सबका स्वागत करती हूँ और साथ-साथ में ये कहना चाहती हूँ कि जो इस समय के हेल्थ चैलेंजेज़ हैं या स्वास्थ्य के प्रति जो हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं, शायद इतिहास में हम लोग के जीवन काल में और उससे पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ। और बहुत लगभग 100 साल पहले की बात शायद लोग करते हैं कि इस तरह की सब समस्याएँ सामने आई थीं। पर क कोविड-19 से जिस तरह की समस्या हमारे सामने आई है, वो बिल्कुल कभी पहले नहीं था। और 2 चीज़ें इसमें सामने उभर कर के आई हैं। वी हैव रियली एनकाउंटर्ड द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच इज़ रियली अबाउट women's health. Three, four types of data which emerged during this period, and that's where we would like our senior doctors to tell us about. One, of course, was a huge challenge of really, COVID, protecting women from COVID, because when young children fell sick, then they were also part of caregiving, and they could not, or elderly in the family, they could not really maintain the social distancing, as we know that we don't have families with lots of space to live together with. So that was one of the things that a lot of women got COVID because they were really the care providers. And दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आया हमारे सामने वो था जो हमारी फ्रंट लाइन वर्कर्स ग्रास रूट पर नहीं है, जैसे कि आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और ये जो ग्रुप था इनके साथ कोई इंटरेक्शन किसी का नहीं हुआ। और बिल्कुल अचानक एक भय के साथ, एक चैलेंज के साथ, एक इस तरह के बिना किसी प्रिपरेशन के वो लोग इस काम के लिए लगाई गई। उसका भी बहुत तरह का नतीजा सामने आया, जो हम लोग की रिसर्च से भी पता चला और जो हमने उनके बीच में काम किया, उससे भी हमें पता चला कि उनके बीच में जो चैलेंजेस आई, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी कम्युनिटी में कैसी रही। काफ़ी सारी उनको आलोचना भी झेलनी पड़ी, बहुत सारी क्रिटिसिज़्म्स के साथ उन्होंने काम, फिर भी उन्होंने वो काम किया। और फिर उनकी खुद की हेल्थ चैलेंज, यहाँ तक कि व्हेन वी डिस्कवर्ड दे डिड नॉट हैव प्रोटेक्शन किट्स, I mean, this was the minimum that could have been done to distribute the protection kits for the level of worker which who have been working at the grassroots level. So we took up that challenge and we distributed the whatever within our own capacity we could do, and a lot of other organizations got involved and took care of that need of the grassroots workers. Now, the third challenge which came was the women who have suffered, uh, weak health due to many reasons, and especially the pregnant women. A lot of hospitals drove them out. Later, of course, all this got adjusted, but we did not really, we saw so many of them suffering because of the way hospitals, medical establishments treated them. Especially for the poor and the lower middle class family women. So this was one of the very, very important area of consideration and concern for future. How do we really ensure? And lastly, the other very big challenge has been about women really succumbing to COVID. So we had more, the data which was provided by research agencies talked about more women died in India than men died due to this illness. Now, clearly women start their life with weak health. मतलब शुरू से ही कोई ध्यान नहीं दिया जाता उनके स्वास्थ्य की तरफ। और so there are 3 stages where women really get really ignored, their health gets ignored. First and foremost is the family itself, or I would start even before that woman herself. The way she's trained, she's silent about her own health. She is not really, she thinks that if she will talk about it, she might create problem for the family. So, and also family ignores her health, starting from as a children, giving them less nutrition, and so many other discriminations that happen. Women start with weak health, and then of course teenage women, menstruating women, and then later pregnant women. There are many health challenges, I need not underline them. So women start with weak health at the family level, and also the response, they themselves are very very with great difficulty and challenge that they move and really speak about it and go to a doctor. And then doctors also, we have seen many times, I mean, I'm not really putting any kind of blame on anybody, but certainly
women have had experiences where they were really not attended to, or they were not really advised properly. I'm not talking about big famous well-known doctors sitting in big cities, but small city towns that we work in, and villages especially. So that's the second institutional discrimination that the women face. And thirdly, of course, when there is a chance and time for a hospitalization, especially maternity, then there is so much of challenge and problem. Even now, we are emphasizing on the one side institutional birthing, on the other side such weak infrastructure. So women do not get the same health attention, same health facility, same health response as men get in this country. So maybe I'm making a very strong statement, but I can back my statement with a lot of data and information and research that has gone into understanding the challenges of women's health in India. So that's my first question to the panelists. Of course, Dr. Mansi Mishra will take the whole conversation forward. The first challenge is, how do we really create community health infrastructure in the country which caters to the needs of the community, and also with special emphasis on women's health? How do we do that? Because this challenge perhaps we are almost about to cross, because vaccine is around. uh, and also the second question then comes, that when the vaccine is coming, how do we ensure that women get it? And what kind of that family should not ignore women, women themselves should not stay back. And also, other than that, how should medical system ensure that women are able to get this? Now, just briefly, I will talk about the growing violence on women. I think a lot of help can come from the medical community. With Dr. K.K. Agarwal, at some point of time, we had some discussion about how we can at least do one small step, that if they recognize that this is not a normal hurt, or it's a normal bruise, or it's normal, it, it's something to do with somebody who had helped, did it to her, or something to do with some kind of a violence at home. So then they can at least refer. I don't think doctors' job is to really get into all this, but doctors can at least refer such cases to institutions and who are working for, so that we can reach out the help to such women. So these are the two areas. One, of course, the community health infrastructure. How do we really develop in such a manner? And also, when we are crossing this bridge of COVID, how do we ensure that every woman and her health gets protected? So this is all I had to say at this stage. Thank you very much, doctors, for joining us. And from here on, I will hand over the discussion part to be taken care of to Dr. Mansi Mishra, who heads our knowledge and research division. I think she will be carrying the discussion forward. So thank you again. And all the participants who are joining, I know we are going to have a large number of participants. Already we have 180 people, almost 72 people almost here. So there'll be many more who are going to come in. So let's keep our parts shorter and let the doctors talk. Thank you. Thank you, ma'am. With this, I will take the discussion forward with our esteemed panelist and chief guest, Dr. K.K. Agrawal. So we are going to show a one slide presentation to know the data exactly how it reflects. Kindly share the screen, Kosal. Yes. So speaking about the data, in India, the mortality rate for women from COVID is 3.9% compared to 2.9% for men. 1 million women healthcare workers have been drafted to fight for COVID situation, COVID-19 India, for as little as 3,000 rupees a month. And as ma'am has already mentioned, the women who have suffered from domestic violence and healthcare facilities have disrupted, and supplies of contraceptives and menstruational hygiene suffered a lot. So from this, we take our discussion further. मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी, जितने हमारे पैनलिस्ट हैं, क्या आप समझते हैं कोविड-19 के अंदर जो जेंडर इनइक्वालिटीज थी वो और ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई?
Please unmute our panelist. पहले मैं अपने तीनों पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे पहले मेरे साथ में एनवी कामत हैं। ये दिल्ली सरकार में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रहे हैं, यानी कि पूरी दिल्ली की स्टेट के इंचार्ज रहे हैं। और बीइंग ए स्टेट हेड ऑफ द हेल्थ वुड मीन ही विल नो व्हाट इज हैपनिंग इन द होल कंट्री। जो दिल्ली में हो रहा है वैसा ही हम सोच के चलेंगे, बाकी सब जगह पे हो रहा है। ये अभी करंटली चीफ एडवाइज़र है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। मेरे साथ में डॉक्टर वीके मोंगा हैं। ये दिल्ली में एमसीडी, जब तीनों एमसीडी कंबाइंड थी तो उसके पॉलिटिकल हेड थे, चेयरमैन थे हेल्थ कमेटी के। ही हैड बीन ए काउंसलर। ही हैज़ फॉट बोथ, ये एमपी का इलेक्शन भी, एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। काफ़ी पब्लिक हेल्थ के अंदर में इनका एक्सपीरियंस है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हाई लेवल पे पूरे इंडिया के अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर के हेड रह चुके हैं, यानी कि पूरे इंडिया में जितने भी नर्सिंग होम अस्पताल आते हैं ये उनको कंट्रोल कर चुके हैं, उनके हेड रह चुके हैं। मैं डॉक्टर के अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूं और अभी करंटली 19 मेडिकल एसोसिएशंस जो एशिया में आती हैं मैं उसका प्रेसिडेंट हूं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूँगा कि सवालों के जवाब हम तीनों में से ये आंसर दिए जा सकते हैं। मैं थोड़ी सी बातें करूँगा, उसके बाद में मैं चाहूँगा कि आप डिस्कशन करें। कुछ फैक्ट्स मैं बता दूँ आपको, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों डॉक्टर मोंगा एंड डॉक्टर कामत कैन टेल यू। नंबर 1 इज, ये मौका है मेंस्ट्रुअल हाइजीन को पूरे भारत के अंदर में प्रमोट करने का। इस वायरस ने हमें एक मौका दिया है कि पूरे भारत में जो औरतों के खिलाफ, मेंस्ट्रुएशन के खिलाफ जो कहा जाता है उसे ये हटाने का मौका है। क्योंकि ये वायरस, अगर किसी लड़की को कोविड हो जाता है, आज उसके सिम्टम्स आ गए और कल उसके पीरियड चालू हो गए, 5 दिन तक रहे, तो 5 दिन तक ये वायरस सिम्टम्स नहीं करता। मेंस्ट्रुएशन में ये बीमारी कम हो जाती है। तो हम कहते हैं ये वायरस भी मेंस्ट्रुएशन को रिस्पेक्ट देता है, आप भी रिस्पेक्ट दो। ये हमारा एक तरीके से डॉक्टर्स हैं पेशेंट को समझाते हैं। जब वायरस तक एक लड़की को सिम्टम्स कम कर रहा है, हमने ऐसा देखा है कि लड़कियों का लॉस ऑफ टेस्ट चला गया, मेंस्ट्रुएशन आया तो वापस आ गया, मेंस्ट्रुएशन चली गई तो फिर वापस चला गया। सो ये वायरस मेंस्ट्रुएशन को भी रिस्पेक्ट देता है, आप लोग भी दो। ये हमारा एक तरीके से लोगों को समझाने का तरीका होता है। दूसरा, ये वायरस 6 साल से कम के बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्यार से रखता है। वो कहता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे साथ में 2-3 दिन खेलूंगा और चला जाऊंगा। तो 6 साल से कम के बच्चे भारत के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर में, ना उनको टेस्ट करने की ज़रूरत होती, ना उनको संभालने की ज़रूरत होती, वो ठीक हो जाते हैं। फिर ये वायरस कहता है बच्चों, अगर तुम अपनी माँ का दूध पी रहे हो तो पियो, अगर माँ को कोविड है भी तो चिंता नहीं करो। तो द करंट पॉलिसी इज़ कि अगर माँ पॉजिटिव है तो मास्क पहन के अपने बच्चे को दूध पिला सकती है और अपने कमरे में रख सकती है। तो कहने का मतलब है ये वायरस बच्चों से बहुत प्यार करता है और उन्हें तंग नहीं करता। 6 और 12 साल के बीच में बच्चे, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, ये उनको भी ये कहता है मैं थोड़ा सा ज़्यादा तंग करूँगा लेकिन मैं आपको मारूंगा नहीं। इसलिए आपने देखा होगा अभी भी 12 साल से कम के बच्चों पे वैक्सीन का ट्रायल भी नहीं हुआ है। मतलब वैक्सीन मिलने की तो बात छोड़िए कि वैक्सीन नहीं मिल रहा, अभी तो ट्रायल ही नहीं हुए हैं। तो
पूरे वर्ल्ड में 16 साल से कम के बच्चों को अभी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा क्योंकि ज़रूरत नहीं है। 12 साल से 20 साल के लड़के या लड़कियां, इनमें रिस्क लाइफ का बहुत कम है, इसलिए 16 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन के बारे में नहीं दिया जाएगा का मतलब है, आंसर है ज़रूरत नहीं है। फिर ये वायरस कहता है कि हे सारी बहनों और माओ जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन है, मेंस्ट्रुएटिंग विमेन का मतलब वो है जिनका मेंस्ट्रुएशन चालू है, उसके अंदर में ये बीमारी खतरनाक नहीं करता। औरतों में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, आदमियों में 1 एक्स क्रोमोसोम्स होता है, इसलिए जितनी भी भयानक बीमारियां होती हैं वो उन लोगों को होती हैं जिनको, उन औरतों को जिनकी मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही या पोस्ट मेनोपॉज के अंदर में उनको खतरा ज़्यादा होता है। मेंस्ट्रुएटिंग विमेन के अंदर में खतरा कम होता है, ज़ीरो नहीं होता, कम होता है। उन लोगों में किसको होगा? जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिन लोगों को पेट का मोटापा है, जिन लोगों को कैंसर है, जिन लोगों को फैटी लिवर है, उन लोगों को ये बीमारी करेगी, लेकिन हेल्दी विमेन के अंदर में ये बीमारी नहीं करता। फिर जब इटली के अंदर में भयानक तरीके से लोग मर रहे थे, तो वहाँ पे फ्रंट लाइन के अंदर में सारी नर्सेस और डॉक्टर्स जिनकी उम्र 40 साल से कम थी, वो सारे के सारे फ्रंट लाइन पे आ गए। उन्होंने सबको कहा हम आगे से लड़ेंगे, क्योंकि औरतों में मृत्यु दर बहुत कम था इटली के अंदर में उसके साथ में। जहाँ तक सवाल है, औरतों के अंदर में लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट आदमियों के मुकाबले ज़्यादा होता है, और जिन औरतों में लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट हो गया और कोविड हो गया, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप से ठीक हो जाते हैं। ये भी देखा गया है कि औरतों को लूज मोशन ज़्यादा होते हैं कोविड-19 में, और अगर आपको लूज मोशन ज़्यादा है, टेक इट फॉर ग्रांटेड, आपको निमोनिया हल्का होगा और आपकी मौत होने की संभावना बहुत कम है। आफ्टर द एज ऑफ 55 आप आदमी हैं कि औरत हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ इसी बीमारी में नहीं, किसी भी बीमारी में फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ट अटैक भी 55 साल के बाद में आदमी और औरतों में बराबर होते हैं। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो औरतों के प्रिविलेजेस हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, औरतों के प्रिविलेजेस हैं। इन सब का ताल्लुकात एक टेस्ट से होता है जिसे हम बोलते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर हमारे शरीर में, अब ये समझ लीजिए ये वायरस कैसे काम करता है मेरे शरीर में, ये 3 चीजें काम करता है मेरे शरीर में। पहला, ये वायरस की तरह बिहेव करता है, आता है और चला जाता है। जाते जाते मेरे शरीर में आग लगा जाता है, उसे बोलते हैं अग्नि। ये अग्नि को इग्नाइट करके चला जाता है 5 एरियाज में, स्किन में, आई में, हार्ट में, लंग में, लिवर में और ब्लड में। वो आग लगा के निकल जाता है। जिन औरतों के शरीर में या जिन आदमियों के शरीर में पहले से ही आग लगी हुई है, यानी कि उनकी अग्नि ज़्यादा है, तो वहाँ ये भड़का देता है। अग्नि का टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। अगर आपका सीआरपी लेवल नॉर्मल है, कोई भी आदमी हो औरत हो, ये वायरस आएगा, 7-8 दिन में चला जाएगा। लेकिन अगर आपकी भट्टी गर्म है तो ये उसमें आग लगा देता है। जब आग लगेगी तो राख बनेगी, राख बनेगी तो कचरा पैदा होगा, कीचड़ पैदा होगा, उसे हम क्लॉट बोलते हैं। औरतों में अगर वो औरतें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही हैं, वो सारी औरतें जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो कीचड़ यानी कि क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको हम लोग साथ में ब्लड थिनर देते हैं। आज की डेट में डॉक्टर मोंगा, डॉक्टर कामत ने आईएमए की तरफ से पूरी गाइडलाइंस बना रखी हैं। उस गाइडलाइंस के अनुसार आज की डेट में किसी को भी कोविड हो जाता है, अगर वो पेशेंट जल्दी पहुंच जाता है तो उसको नया जन्म लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आज मेडिकल प्रोफेशन हमारे आईएमए की, जो आईएमए इसमें कर रहा है, वो एक बहुत सराहनीय रोल है। आईएमए करीबन 3.5 लाख डॉक्टरों का एक बॉडी है जो काउंसिल नहीं है, जो रूल मेकर नहीं है।
जो सरकार नहीं है, जो पॉलिटिकल नहीं है। हम भी आपकी तरह ही एक एसोसिएशन है। अगर आपको पता लगे कोई चीज़ भी कहीं पर गलत हो रही है, डॉक्टर मोंगा, डॉक्टर कामत को बताइए, साथ में मिलकर लड़ेंगे। अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं पर भी भेदभाव हो रहा है, यस, मेडिकल प्रोफेशन का भी ये कर्तव्य है कहीं पर भी भेदभाव ना हो। इस वक्त में आशा वर्कर है कि आशा वर्कर फीमेल है कि मेल है, किसी डॉक्टर के पास में हमारा पहला धर्म है, कहीं पर भी जात हमारे यहाँ पे कि किसी का भी सेक्स क्या है, जात क्या है, हम लोग नहीं पूछते। हमारा काम है, कर्तव्य है पेशेंट को ठीक करना। सो आई थिंक इस सिचुएशन में अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि कहीं पर भी भेदभाव हो रहा है, तो IMA की रिस्पेक्टिव ब्रांच, हम लोग करीबन 1800 डिस्ट्रिक्ट में हमारी ब्रांचेस हैं जो इसके बारे में देख सकते हैं। इसके साथ में बहुत सारे सवाल जो रंजना जी ने क्वेरी किए हैं, शायद हम लोग उसमें कंफर्टेबल ना हो बोलने के लिए, देखो वो सरकार की नीतियां हैं। सरकार की नीति आजकल क्या है शायद हमें भी ना मालूम हो कि सरकार क्या कर रही है, कैसे करेगी। हम लोग मिलके सजेशंस दे सकते हैं सरकार को कि ऐसे करना चाहिए। आज की डेट में सरकार वैक्सीन कैसे देगी, किस स्टेट में कितना देगी, क्यों देगी, सरकार की पॉलिसी सब साथ में आएंगी। तो उन पॉलिसीज में अगर आपको लगे कहीं पर भी कोई गलत है, आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लिख सकते हैं, वो भी सरकार को लिख सकते हैं कि ये गलत है। उसके साथ में जी सर। वैक्सीन अभी लगेंगे, सबको लगेंगे, ये मेडिकल प्रोफेशन इंश्योर करेगा। अब मैं चाहूंगा पहले सवाल को आप डॉक्टर कामत से पूछें जी रिलेटेड टू दैट। सर डॉक्टर कामत, मैं आपके पास आना चाहूंगी पहले सवाल के साथ कि आप क्या सोचते हैं कि कोविड-19 के अंदर जो जेंडर इनइक्वलिटीज थी हेल्थ केयर फैसिलिटीज में, तो वो इंटेंसिफाई हो गई या हम कैसे उसको एड्रेस कर रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर कामत, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। Till that time, so I'm coming to Dr. Monga. सर आप क्या सोचते हैं कि हम ये इनइक्वलिटीज को कैसे एड्रेस करें? नहीं, बेसिकली अधिकतर प्रश्नों के जवाब डॉक्टर के अग्रवाल ने दिए। इससे पहले कि मैं IMA का इसमें रोल की बात करूं, पूरा का पूरा विश्व का और इंडिया का भी पब्लिक हेल्थ सिस्टम एक्सपोज हुआ है। जो हम सोचते थे ना कि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, बहुत कुछ है, अमेरिका जैसे, इटली जैसे देशों के अंदर हजारों की मात्रा में लोग रोज मर रहे हैं। तो हेलो, या ठीक है, ओके। तो वो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सारा का सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ। पता लगा कि एक वायरस जो है दैट इज मोर पावरफुल देन एनीबॉडी एल्स ऑन दिस अर्थ। चाहे आप सरकारों की बात करें, चाहे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात करें। और जहाँ तक इनइक्वालिटी की बात करें कि इनइक्वालिटी के अंदर डेफिनेटली भारतवर्ष के अंदर तो इनइक्वालिटी शुरू से रही है। डॉक्टर के ने कहा, चाहे न्यूट्रिशन की बात करो, चाहे उनके वैक्सीनेशन की बात करो, चाहे उनकी देख रेख की बात करो, चाहे मुझे लगता है कि उनका सोशो जो इवन मेंटल मेकअप की बात है, हमने हमेशा से महिलाओं के साथ या फीमेल जो जितने भी मेंबर्स ऑफ द फैमिली हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हमने एक व्यवहार जो है वो सौतेला किया है। तो उसी को लेते हुए इसमें भी अगर आप देखें पूरे के पूरे प्रकरण के अंदर, नंबर एक तो बात यह कि महिलाएं यूजुअली दे डोंट कंप्लेन एंड दे डोंट कम आउट। नंबर दो, उनकी डिसप्रोपोर्शनेट है टेस्टिंग आल्सो। परिवार के जो व्यक्ति हैं, जो मेल लोग हैं, वो टेस्ट करा लेंगे, महिलाएं घर बैठी रह जाएंगी। और तीसरी बात यह है कि जब पॉजिटिव भी आ जाएंगी महिलाएं
तो इन दैट केस उनको हॉस्पिटल ले जाने में मुझे लगता है कि आम परिवारों के अंदर एक सॉर्ट ऑफ मैं कह सकता हूँ कि कष्ट ज़्यादा होता है। एक पुरुषों को अस्पताल में दाखिल कराने के लिए वो ज़्यादा जल्दी तत्पर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। तो वो ये सारे के सारे फैक्टर्स मुझे लगता है कि हमारे इनबिल्ट हैं हमारी संस्कृति के अंदर, जो कि विदेशों में कई देशों के अंदर नहीं है। तो ये इट नीड्स टू बी वर्कड ऑन दैट लेवल। IMA इज डेफिनेटली अ बॉडी ऑफ 3.5 लाख डॉक्टर्स, लेकिन ये जो इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी कह लो या एक सेक्स की इनइक्वालिटी कह लो, जो घर के अंदर 2 बेटे 2 बेटियां हैं तो बेटियों को खाना बाद में दें या उनको न्यूट्रिशन दें, उनको बचा हुआ दें या उनको प्रोटीन कम दें, ये प्रथा हमारे यहाँ चली आई है। तो आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑन ए बिगर फुटिंग, जिसमें कि सारी NGO मिलकर सरकारों को भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक सरकार ने कल रिपोर्ट भी दी है कि इंडिया में जो मेल न्यूट्रिशन है, एनीमिया और जो डिक्रीज ग्रोथ है, वो उन सब चीज़ों को लेकर वी आर स्टिल आई मीन बियॉन्ड इमेजिनेशन आल्सो, और वुमेन के साथ वो ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर कलेक्टिव एफर्ट फ्रॉम सो मैनी forces will have to be there before we reach a solution to this. Thank you, Dr. Monga. Dr. Kamath, आपका वॉइस अगर उसमें आ गया या है। अभी सुनाई दे रहा है? जी सर, जी सर। या ओके। तो रिगार्डिंग दिस जेंडर इनइक्वालिटी, मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ केयर सेक्टर में 2 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोफेशंस है, एक नर्सिंग प्रोफेशन, दूसरा आशा हेल्थ वर्कर। ये कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय द वुमेन। ये पूरा महिलाओं ने, मतलब नियरली 95% इसमें महिलाएं दोनों इसमें। और मैं नहीं समझता अभी कोई इसमें इनइक्वालिटी का कोई बोल रहा है। और इवन डॉक्टर्स में और बाकी हेल्थ केयर वर्कर्स में अगर महिलाओं की संख्या कम होगी, लेकिन बट दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड इक्वल टू देयर मेल पार्टनर्स। इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर पेशेंट्स का देखें, जितने भी दिल्ली में सरकारी हॉस्पिटल और दिल्ली के बाहर भी कई जगह जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उसमें महिलाओं के लिए अलग से लाइंस रजिस्ट्रेशन के लिए, और दवाई और लैब के लिए उनका अलग से व्यवस्था होती है। तो प्रेफरेंस तो उनको दिया जाता है, हेल्थ केयर वर्कर्स, हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स आर कंसर्न। इसमें कोई इनइक्वालिटी का मेरे को नहीं लगता है कि कहीं इनइक्वालिटी दिखाई दे रहा है। ओके सर। सर, दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि जो हमारी फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जेहेतु वो 24/7 काम कर रहे हैं, बहुत जगह उनको महीने की तनख्वाह भी ढंग से नहीं मिल रही है, लेट मिल रही है, तो ये सब प्रॉब्लम लगातार लग रही है। और घर से भी प्रेशर है, घर का भी उनका बैलेंस रखना पड़ता है। इन सब के दौरान उनकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है। तो क्या IMA ने कुछ ऐसे कदम उठाया कि मेंटल हेल्थ की जो इशू है फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स की, उसको कैसे एड्रेस किया जाए? या एक्चुअली जो मेंटल हेल्थ जो है अफेक्ट हुआ कोविड में, नॉट ओनली ऑफ द हेल्थ केयर वर्कर्स और बाकी जनरल पब्लिक का भी, क्योंकि ये नया डिसीज था, नया तरीका था, नया तरीके से इसको कंट्रोल करना था। हम लोगों ने पहले कभी सुना नहीं है और गवर्नमेंट ने इसको पेंडेमिक घोषित किया। और हमारे जमाने में इतना विश्व भर में इतने बड़ी स्तर पे पेंडेमिक घोषित कभी हुआ नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एट ए टाइम जो हुआ। और लोगों ने यही सोचा कि भाई ये कोई नई चीज है, और सरकार ने जब पेंडेमिक घोषित किया तो ये वार लाइक सिचुएशन हो गई, कमांड सिचुएशन हो गई, और उसके बाद लॉकडाउन भी डिक्लेयर किया। और IMA ने ये सारी चीजें हमने पहले ही सोच लिया था क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। 2000 मार्च 2nd वीक में एक हेल्थ मिनिस्टर में मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे IMA के प्रेसिडेंट भी गए थे, मैं भी गया था। उसमें हम लोगों ने गवर्नमेंट को पूरा गाइडलाइन दिया कैसे कैसे तैयारी करनी है आने वाले कोविड इसमें, इंक्लूडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सारे चीजें। उसके बाद लॉकडाउन डिक्लेयर करने के पहले ही 2nd वीक में ही हमने एक टीम तैयार की थी 10-12 डॉक्टर्स का,
जिसमें डॉक्टर के अग्रवाल ने ट्रेनिंग दिया था उनको, लोगों को, पब्लिक को हेल्प करने के लिए, जिसमें लोगों को इतना दहशत फैल जाएगा आने वाले दिनों में कि क्या हो रहा है, क्या करना है, हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लॉकडाउन में कैसे फेस करना है, बाहर जाने से क्या होगा, ट्रीटमेंट कहाँ से लेना है, ये सारे चीजें लोगों में हुआ। तो ये टीम जो डॉक्टर के अग्रवाल ने ट्रेन की थी 1-2 दिन में IMME, तो हमने 15 मई से और 15 मार्च से हमने इसको एक हेल्पलाइन शुरू कर दिया था फॉर ऑल ओवर इंडिया। एंड पहले हमने फर्स्ट डे 2-3 डॉक्टर को लगाए थे, रिस्पांस इतना आया तो हमें लगा कि 3-4 दिन के अंदर हमने 8-10 डॉक्टर एक दिन में लगाना पड़े, 24 घंटे का ये था। तो इतने सारे कॉल्स आने लग गए, और जो हेल्पलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी किया था, तो वहाँ डॉक्टर्स नहीं मैनेज करते थे, हमारे हेल्पलाइन में डॉक्टर्स मैनेज करते थे। तो हम लोगों ने, तो वहां से भी रेफर होके आते थे गवर्नमेंट की तरफ से भी, तो अगर आपको डॉक्टर से बात करना है तो IMA का हेल्पलाइन को देते थे। ये हमने जनरल पब्लिक के लिए किया, इसमें मेनली मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। देन वी रियलाइज दैट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, जो डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल्स जो भी है, इनको ज्यादा दिक्कत हो रही है। कुछ लोग सुसाइड करने के टेंडेंसी में आ गए हैं, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों को सही सुविधाएं नहीं मिल रही है अपने हॉस्पिटल में ही। PPE किट 8 घंटे 10 घंटे पहन के रहना, स्पेशली फॉर लेडीज, इट इज नॉट ए इजी जॉब, इट इज वेरी डिफिकल्ट। हमें मास्क पहनने में 2 घंटे में इतना मुश्किल हो जाती है, और पूरा PPE किट पहन के रहना, मतलब ये इट इज ए पनिशमेंट। और ऐसे सिचुएशन में करते हैं, तो हमने फिर सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स को कंसिडर करते हुए कि हमने एक साइको सोशल हेल्पलाइन शुरू किया IMA में जून में, और करीब हमने 2 महीने चलाए वहाँ हेल्पलाइन। तो उसमें हमारे जाने माने साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट 12-13 लोगों को हमने चुना हुआ था। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी लोग थे, और कुछ लोगों का इतना लंबा ये चलता था कंसल्टेशन, वो करीब 20 मिनट 25 मिनट 40 मिनट तक चला जाता था। तो इतना लंबा कंसल्टेशन वगैरह करके हम लोग, और उनको कॉल बैक भी करके हमारे टीम ये करते थी। करीब हमने 2 महीने चलाए। उसके बाद हमारे ही पार्ट इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उन्होंने शुरू किया हेल्पलाइन ऑल ओवर इंडिया, स्टेट वाइज। हम लोगों ने सेंट्रली किया था, तो अलग स्टेट में इंडियन साइकेट्री सोसाइटी ने शुरू किया अलग अलग इसमें, और उनकी अलग अलग ब्रांचेस में अभी चल रही है। तो हम लोगों ने जब उनका वो चल गया तो हमने उसको विड्रॉ कर लिया। ये हमारे एक चीज को मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये बीमारी 9 दिन में ये बीमारी खत्म हो जाती है, यानी कि वायरस 9 दिन में मर जाता है। उसके बाद में अगर आप किसी से मिलते हो तो ये आपको बीमारी नहीं होती। दूसरा, कम से कम 15 मिनट की मीटिंग करोगे तब ये बीमारी होती है। 9 दिन के बाद में जब ये वायरस मर गया, क्योंकि ये आग जला के छोड़ गया, तो मेरे शरीर में जो आग लगी हुई है उसको रिपेयर करने में 3 महीने लगते हैं। सो कोविड इज 9 days, पोस्ट कोविड इज 3 months, और ये अगर 6 महीने लगे तो उसे लॉन्ग कोविड बोलते हैं, और उसके बाद में जाके आदमी नॉर्मल होता है। जितने भी आशा वर्कर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स जो विमेन हैं, ये पक्का है कि the COVID is more killer in men during the first 9 days. पहले 9 दिन में जो लोग सीरियस होते हैं उसमें मेन ज़्यादा होते हैं, लेकिन 9 दिन से 30-90 दिन के बीच में जो पोस्ट कोविड सफरिंग्स हैं वो औरतों में ज़्यादा होते हैं। और उसमें से एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, 2 चीज़ें औरतों में होती हैं। नंबर 1, अगर किसी को भी कोविड हुआ, आदमी है कि औरत है, तो 2 ग्राम हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, कम से कम 1 ग्राम और 2 ग्राम के बीच में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। मेंस्ट्रुएटिंग विमेन में आयरन पहले ही कमी होती है, उनका हीमोग्लोबिन अगर 10 था तो 8 हो गया या 9 हो गया। तो पोस्ट कोविड में उनको कॉग्निटिव फंक्शंस आ जाते हैं, क्योंकि उनके साथ में जो है, तो एक तो हीमोग्लोबिन कम हो गया,
दूसरा, विमेन को डायरिया मेन से ज़्यादा होता है, तो B12, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, प्रोटीन, ये लॉस होता है जो 3 महीने तक होता रहता है, क्योंकि 3 महीने तक कई महिलाओं में ये वायरस स्टूल में पाया गया है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि 3 महीने तक अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनको कॉग्निटिव डिसफंक्शन होता है। कॉग्निटिव डिसफंक्शन औरतों को भी होता है, आदमियों को भी होता है, लेकिन 3 महीने तक कॉग्निटिव फंक्शंस 5 प्रकार के होते हैं। कैलकुलेशन, मेमोरी, वो क्या बोलती हैं, अरे क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, दोबारा बता, वो घर में लड़ाई, अभी तो बताया था। औरत कह रही है कि मेरे को तुम, वो कह के भूल जाती है, और जब घर में लड़ाई होती है कि अभी तो कहा था, वो कहती है नहीं दोबारा बोलो। वो घर में छोटी छोटी चीजों पे, तो इमीडिएट मेमोरी लॉस इज कॉमन इन द फर्स्ट 3 months, एंड देन रीडिंग, लैंग्वेज, रीजनिंग, बच्चे रीजन करते हैं, माँ को माँ रीजन नहीं कर पाती, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। सो ये कॉग्निटिव फंक्शंस, इसे हम ब्रेन फॉग बोलते हैं। जैसे ब्रेन के अंदर में फॉग आ गया हो, धुंधलापन आ गया हो ब्रेन के अंदर में, ये ब्रेन फॉग औरतों में आदमियों के मुकाबले ज्यादा होता है। ये धीरे 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 ठीक हो जाता है सबके अंदर में। सो एक्सपेक्टेड है कि औरतों के अंदर में और आदमियों में, औरतों में थोड़ा ज़्यादा, कि 3 महीने तक उनको मेंटल प्रेशर हो। आप देख सकते हैं एक डॉक्टर दिल्ली के अंदर में पोस्ट कोविड फेज में उसका इतना ब्रेन फॉग हुआ कि घर में चिट्ठी लिख के गायब हो गया। आजकल रोज पेपरों में आ रहा है कि एक डॉक्टर जो है वो मेल है, उसको इतना ब्रेन फॉग हुआ, उसको सहन ही नहीं कर पाया इस कॉग्निटिव डिसफंक्शन को। लोग इस कॉग्निटिव डिसफंक्शन में सुसाइड कर लेते हैं उसके साथ में। सो कॉग्निटिव डिसफंक्शन, जिसे हम बोलते हैं हमारा एक्सेल, जैसे कंप्यूटर में एक्सेल होता है, अगर आपका एक्सेल खराब हो जाए, सोचिए कि आपका माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, पावर पॉइंट चल रहा है, लेकिन एक्सेल नहीं चल रहा, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे, आप दुकान में बैठे हैं और आपकी कैलकुलेशन आपको याद नहीं आ रही कि 100 में से 100 रुपए दिए, 7 रुपए की सब्जी आप कितने वापस करने हैं। इमेजिन आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो ये फ्रस्ट्रेशन 3 महीने तक दिखाई देता है। तो इसलिए सब लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है कि अगर किसी को ब्रेन फॉग हो रहा है, उससे लड़ाई झगड़ा ना करें, उसको स्टिमुलेट ना करें, उसको इंस्टिगेट ना करें, उनको समझें, उनकी बीमारियों को समझें। ये सब करने से आपको फर्क पड़ेगा। अभी मैंने देखा किसी ने सवाल पूछा था कि मेंस्ट्रुएशन में ये बीमारी क्यों कम हो जाती है। वो ईस्ट्रोजन से होती है। ऐसा माना जाता है कि इंटरल्यूकिन 6 एक ऐसा केमिकल है, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, IL-6 टेस्ट करा रहे हैं लोग, IL-6 का टेस्ट करा रहे हैं। तो इंटरल्यूकिन 6 जो मेरे शरीर में है वो ईस्ट्रोजन बढ़ाता है, और सोया का प्रोटीन भी इसके साथ में ताल्लुकात करता है। तो इट इज रिलेटेड टू इंटरल्यूकिन 6 को कम करता है सोया, सो इंटरल्यूकिन 6 अगर लोगों के मेंस्ट्रुएशन के दौरान में जो हार्मोनल बैलेंसेस होते हैं, उससे इंटरल्यूकिन 6 कम हो जाता है, उससे मेरा इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है ट्रांजिएंटली। तो जब आपने मेंटल हेल्थ की बात करी तो मेरे को लगा कि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि 3 महीने तक ऐसा होगा, औरतों में आदमियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। तो उसको आप डिस्क्रिमिनेशन ना मान के बीमारी का एक पार्ट माने, इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, क्योंकि ये 3 महीने के अंदर में लड़ाई झगड़े इस कारण से भी हो सकते हैं कि सब लोग समझ नहीं पा रहे कि ये ब्रेन फॉग है। ब्रेन फॉग के इलाज के लिए आप मेलाटोनिन ले सकते हैं। आप मेलाटोनिन वो चीज़ है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन हमारे शरीर में बैलेंस करता है। सेरोटोनिन को हम उत्तरायण बोलते हैं, मेलाटोनिन को दक्षिणायन बोलते हैं। सेरोटोनिन को पूर्णिमा बोलते हैं, अमावस्या को मेलाटोनिन बोलते हैं। दिन को सेरोटोनिन बोलते हैं, रात को मेलाटोनिन बोलते हैं। हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जो डिसाइड करती है दिन में क्या करना है, रात को क्या करना है। ये वायरस जाके बायोलॉजिकल क्लॉक को भड़का देता है, खराब कर देता है, रीसेट कर देता है। तो हमारे को हल्का सा फीवर आता है। ज़्यादातर अब क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा झगड़ा क्या होगा, सुबह उठेंगी, घर में लड़कियां सब कुछ ठीक है, दोपहर में जब खाना बनाने का टाइम आएगा तो बोलेंगी मेरे को फीवर आ रहा है। सास बोलेगी है नखरे कर रही है तू, तेरे को फीवर कहाँ का आ रहा है। घर का हस्बैंड बोलेगा तू नखरे कर रहा है। तो ये जो फीवर है 3 महीने तक आपको दोपहर का फीवर आ सकता है। ये बायोलॉजिकल क्लॉक के बिगड़ने से होता है। इसमें आपका फीवर दोपहर में आएगा, शाम को चला जाएगा, 3 महीने से लेके 6 महीने तक रहेगा।
कुछ औरतों में स्मेल एंड टेस्ट चली जाएगी, 3 से 6 महीने तक रहेगी। जब उनको टेस्ट नहीं आ रहा तो पता ही नहीं लग रहा तो नमक ज़्यादा डाल देंगी, शुगर ज़्यादा डाल देंगी। जब नमक ज़्यादा डाल देंगी तो घर में झगड़ा चालू, तो नमक ज़्यादा डाल दिया, वो कहती है नहीं डाला, अरे उसका टेस्ट नमक का वो अपने हिसाब से टेस्ट डाल रही है, उसका तो पार्शियल लॉस हो चुका है स्मेल का। तो ये बातें घर घर में पहुंचानी ज़रूरी है कि हमें इस बीमारी के बारे में समझना है। ये बीमारी 3 महीने तक हमारी जिंदगी की नॉर्मल लाइफ को बिगाड़ सकती है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अग्रवाल, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने हाईलाइट किया। तो लेमैन की पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि घरेलू हिंसा का बढ़ने का जो खतरा है, मुझे पूरा आशा है, यहाँ पे हमारी आशा एएनएम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटी मेन वुमेन हैं, तो लोग सुन रहे हैं और घर घर तक और ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे। बहुत हद तक आपने मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेल फीमेल मोर्टेलिटी इशू पे भी जवाब दिया। मैं डॉक्टर मोंगा आपके पास आना चाहूंगी। आप क्या समझते हैं कि मेल फीमेल मोर्टेलिटी रेशियो जो है कोविड-19 के दौरान कैसा रहा? नहीं, डॉक्टर के अग्रवाल ने अभी आपको बताया कि जो मेंस्ट्रुएशन वाली एज है उसके अंदर फीमेल्स में हैव एन एज की भी ठीक है। बाकी अदरवाइज ओवरऑल जो इंडियन फिगर है वो आपने शुरू में बताई कि CFR जो है, केस फर्टिलिटी रेशो, वुमेन की 3.3 है और मेन की 2.9 है। कई देशों के अंदर ये रिवर्स भी है। इसका जो ये इसमें कहते हैं कि महिलाओं का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग होता है और ना वो स्मोक करती हैं, उनका लाइफस्टाइल भी लिटिल बिट बेटर होता है और बाहर कम निकलती हैं। उसके बावजूद ये जब इन्फेक्शन होता है तो डेथ के रेट जो हैं 40 साल की बड़ी उम्र के अंदर वो ऑलमोस्ट एट पार एज मैन हो जाते हैं। तो ओवरऑल जो फिगर देखी गई है वो इंडिया में और कई देशों के अंदर वुमेन में ज़्यादा है। अदरवाइज ओवरऑल थ्रू द वर्ल्ड परसेंटेज के हिसाब देखा जाए तो मैन हैव सफर्ड मोर आल्सो। लेकिन जहाँ तक बीमारी होने की बात है, जहाँ तक बीमारी होने की बात है, कितना महिलाओं को हो रहा है कितना पुरुषों को हो रहा है, तो डेफिनेटली पुरुषों को ज़्यादा हो रही है ये बीमारी एज कम्पेयर टू मैन, एटलीस्ट इंडियन सराउंडिंग्स के अंदर। आई थिंक यस सर, रिपोर्टिंग कम हो रही है वुमेन की। यस, वुमेन की रिपोर्टिंग कम हो रही है। मैंने शुरू में बताया था कि वो पहली बात तो टेस्ट नहीं कराती महिलाएं, और टेस्ट करा लेती हैं पॉजिटिव आ जाती हैं तो उनको अस्पताल दाखिल नहीं कराते। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटा मोटा किसी भी नीम हकीम से 2-4 दवाइयाँ खा के घर के अंदर ही पड़ी रहेंगी, लेकिन अपने ऊपर खर्चा महिलाएं यूजुअली नहीं करना चाहती। आप महिला होते हुए भी आप ओवरऑल सोशल वर्कर हैं तो यू नो इट कि महिलाएं कहती हैं कहाँ जाऊंगी, अस्पताल में पैसा खर्च हो जाएगा, 2400 रुपये टेस्ट के लग जाएंगे, क्या फायदा, तुम जाके करा लो। ये सारी जो फीचर्स हैं ये डेफिनेटली हैं, लेकिन ओवरऑल मोटा मोटा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कोई ऐसा मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के अंदर फर्क नहीं है बियॉन्ड ए सर्टेन एज। थैंक यू। डॉक्टर कामत, मैं आपके पास आना चाहूंगी इस क्वेश्चन के साथ कि जो मैं प्रेग्नेंट इसमें मनीषी जी मैं एक चीज को ऐड करना चाहूंगा कि एक ICMR ने टेस्ट बोला है जिसे बोलते हैं पूल्ड टेस्ट। पूल टेस्ट का मतलब है कि एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो वो पांचों का एक टेस्ट करा सकते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आया, इसमें से 5 में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव है, ट्रीटमेंट सबको दे दो, सोच के चलो 5 पॉजिटिव है, आज नहीं तो कल होंगे। तो पूल्ड टेस्ट जो ऐसे होते हैं ना, आदमी ने जाके अपना टेस्ट करा लाया, बीबी का नहीं कराया, और आदमी का नेगेटिव आया तो सबको हो गया। तो पूल टेस्ट भी लोग सोच सकते हैं कि एक फैमिली का पूल टेस्ट करा लिया जाए, और पूल टेस्ट पॉजिटिव है तो एज्यूम सारे के सारे पॉजिटिव है। डॉक्टर कामत कैरी ऑन। डॉक्टर कामत, मैं आपसे जानना चाहूंगी जो प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं तो वो कोविड-19 की ट्रीटमेंट से एक्सक्लूजन रहे या उनको मिला है ट्रीटमेंट, क्या क्या रहा सिनेरियो? आपने ये देखा होगा कि कई सारे हॉस्पिटल्स जो है कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिए गए, और आज के दिन में आउट ऑफ नियरली 46,000 बेड्स दिल्ली में अबाउट 23,000 आर रिजर्व फॉर कोविड। अब रह गए अबाउट 50%। तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, तब तक डॉक्टर मोंगा को ले लीजिए। यस
सर आप इस बारे में जवाब देना हाँ, नहीं, डेफिनेटली डॉक्टर कामत जो कह रहे थे कि काफ़ी अधिक संख्या में बेड्स जो हैं वो इस काम के लिए रखे गए कोविड के लिए। एलएनजेपी की अपनी फिगर जो है वो 10,000 कोविड पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया और उन्होंने उनकी फिगर आई डोंट रिमेम्बर लेटेस्ट क्या है, लेकिन उन्होंने सैकड़ों डिलीवरियां की हैं कोविड पेशेंट्स की और सिजेरियन तक की हैं और शायद केवल एक बच्चे को वहाँ पर आज तक कोविड पॉजिटिव जो न्यू बॉर्न था वो पाया गया। ओवरऑल जो वर्ल्ड की फिगर्स हैं वो भी बहुत मिनिस्क्यूल हैं कि बच्चे को पोस्ट डिलीवरी पॉजिटिविटी हो, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ महिलाएं मिसकैरेज कर जाती हैं, कुछ आईयूडीज कुछ महिलाओं के अंदर हो जाते हैं। तो ये डेफिनेटली कोविड मदर्स की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कॉम्प्लिकेशंस देखी गई हैं, लेकिन पोस्ट डिलीवरी बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस के बहुत कम चांस हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में डॉक्टर के अग्रवाल ने आपको पहले से बता दिया है कि फीडिंग मदर अगर मास्क डाल के बच्चे को फीड करती है तो फ्रीली कर सकती है, उसमें बहुत ही बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट जीरो चांस हैं कि बच्चे को भी इससे कोई तकलीफ होने वाली है। तो आई थिंक वी हैव बीन डूइंग प्रीटी सेफ थिंग्स। और दिल्ली के अंदर बहुत अस्पतालों के अंदर जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी हॉस्पिटल जो डेडिकेटेड थे कोविड को, दे हैव बीन कैरिंग आउट these exercises, normal delivery, cesarean and other operations on COVID positive patients also। ये हो रहा है दिल्ली के अंदर। तो ऐसा कोई बहुत मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कि छोटे अस्पतालों के अंदर जहां मान लो एक महिला बुक्ड थी और ऑपरेशन से पहले या डिलीवरी से पहले उसका टेस्ट कराया गया, वो पॉजिटिव आ गई, तो इन दैट केस वो हॉस्पिटल्स ने जरूर उनको मना किया होगा कि वी आर ए नॉन कोविड हॉस्पिटल, तो आप इसको कहीं ऐसे ले जाइए जो कोविड हॉस्पिटल हो, क्योंकि कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर दे आर मोर प्रिकॉशंस, वो पूरी की पूरी किट के साथ, पूरी उनकी ऑपरेशन थिएटर, पूरा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा उनका स्टाफ इस तरीके से होता है जिससे कि वो अपनी भी केयर कर सकते हैं और पेशेंट की, और जो वहाँ बाकी पेशेंट एडमिट हैं उनका भी ध्यान रखा जा सकता है। तो ये आई थिंक दिल्ली हैज डन प्रीटी वेल। सर जैसे ये पैंडेमिक एक मेडिकल इमरजेंसी होके आया, ऐसे ही कोई मेडिकल इमरजेंसी में हम कैसे इंश्योर करें कि सारे जो महिलाएं हैं उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रॉपरली मिले? नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि मिल ही रही है प्रॉपरली, एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू इंस्टेंसेस समवेयर। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इस पर शुरू में आईसीएमआर की और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस बहुत क्लियर नहीं थी, तो इसलिए जैसे एलएनजेपी हॉस्पिटल है तो वहाँ पर खूब डिलीवरीज भी हो रही हैं, रिप्रोडक्टिव केयर भी हो रही है, एएनसी भी हो रही है, पोस्ट डिलीवरी उनकी केयर भी हो रही है। तो ओवरऑल आई थिंक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, यू फाइंड ए वुमन कि वो 9 महीने घर पे रही या कभी कभी एंटीनेटल केयर के लिए गई, और डिलीवरी के लिए जब आप आपके पास आती है और आप पूछते हो कि आपको कोई खांसी सिम्टम कुछ तो नहीं है, वो कहेगी नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि 100 में से कम 10 महिलाएं ऐसी निकलती हैं जिनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाइल एट होम उन महिलाओं को पूरी प्रिकॉशन वही लेनी है जो आम आदमी को लेने हैं, जैसे मास्क डाल के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग करके रखना है, हैंड वॉशिंग करके रखना है, क्योंकि अगर वो नहीं बाहर जा रही, बाहर दूसरे लोग, उनका दूसरा भाई होगा, बहन होगा, हस्बैंड होगा या कोई और काम करने वाला होगा जो बाहर से होकर आ रहा है, इन्फेक्शन लेके आ रहा है, तो उस महिला को भी इन्फेक्शन होने के पूरे चांस हैं। तो इसलिए ये एक तो हमारी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उनकी सोशल एजुकेशन देना, और जहाँ एंटीनेटल के लिए डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो वहाँ पर भी डॉक्टर्स को पूरी तरह से गाइड करना चाहिए कि आप इस वक्त जो वल्नरेबल एज ग्रुप में हो, वल्नरेबल टाइम पीरियड आपका, इस वक्त आपको प्रिकॉशन ज़्यादा लेनी चाहिए। तो दीज आर द इश्यूज आई थिंक वेल कवर्ड विद इन द कम्युनिटी। डॉक्टर कामत, आप आंसर दे रहे थे सर, अगर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। तो यही जो मेरे को बोलना था, डॉक्टर मोंगा ने ऑलरेडी बता दिया है कि कहीं भी जो है ना, ये मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज कहीं डिसरप्टेड नहीं हुआ। दे वर टेकन केयर एज दे वर टेकन बिफोर। बाकी सारे सर्विसेज डिसरप्ट हुए, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स,
और कई सारी चीजें वो बंद कर दिया गया, लेकिन ये सर्विसेज सब जगह एक्सक्लूसिवली चालू रखा गया। डॉक्टर अग्रवाल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। क्या कारण है कि महिलाएं जो है एकदम अंडर रिप्रेजेंटेड है, कि जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग हो रही है या इसको लेके रिसर्च हो रही है, उस जगह पे महिलाएं अंडर रिप्रेजेंटेड हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम मिलके लड़ेंगे जिसके लिए, बिकॉज सबको जो चीज़ें मालूम है वो सबको मालूम है, तो उसमें रीज़न आउट करने की ज़रूरत नहीं है। मिलके सरकार के पास जाना चाहिए, पॉलिसीज आप बनाइए, क्या चाहती हैं महिलाएं, हम भी आपके साथ हैं। हमारा काम इस वक्त में ये है कि पूरे इंडिया में अगर आप चाहें, मान लीजिए सपोज यू पिकअप, आप 5,000 महिलाओं को इकट्ठा करिए, हम लोग मिलके उनको पूरी कोविड की ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। they can become this will be a free of cost training. They can become COVID educators all over the country and they can help. ये काम है जो हम कर सकते हैं, हम शक्ति दे सकते हैं औरतों को, वो शक्ति के साथ में बाद में आ सकती है। दिस इज व्हाट वी कैन डू। मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव करता हूँ, सरकार जो करती है वो करे, हम क्या कर सकते हैं मैं उस पर जोर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब भी हमने सरकार को लिखा है, हमने सरकार से, जब मेरे टाइम पे जब मैं सेक्रेटरी जनरल था, यही फार्मर्स के साथ होगा, हमारे साथ में भी उन्होंने यही कहा, कमेटी बना दी। कमेटी बनाने के बाद में हर 3 महीने बाद मीटिंग होती गई, इतने में हमारा ईयर चला गया, नेता बदल गए, और उनका ये पैटर्न है, अगर आप कोई भी चीज़ करोगे वो ना नहीं करेंगे, बोलेंगे हमने कमेटी बना दी है, कमेटी में रंजना जी को ले लेंगे, फिर 3-3 महीने में बुलाएंगे, और तो 1 साल के बाद बोलेंगे कि जी हेल्थ मिनिस्टर चेंज हो गया, जी सेक्रेटरी चेंज हो गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चेंज हो गया, और वो बस बस्ते में चली जाएगी। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है वो यही है, हमारे को मिलाइए उस चीज़ पे जो हम कर सकते हैं, हम करके बहुत सही आपने सर बताया, और मिलके लड़ेंगे इस चीज को कि महिलाएं पॉलिसी मेकिंग में क्यों नहीं है और कैसे आएंगे, वो रास्ता हमें बनानी पड़ेगी और हम मिलके लड़ेंगे इसके लिए। सर, वन पॉइंट अगर हम बात करें कि ये जो पैंडेमिक हमने सबने फेस किया, इससे महिलाओं का जो 1 पॉइंट टेक अवे होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? 2021 में ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, लिख के रख लीजिए। कारण है कि इस वक्त में ICMR ने कहा है 31 अगस्त तक 60% लोगों को हो चुका था, और जून, जुलाई, अगस्त में 10 गुना बीमारी में एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई थी, और उन्होंने ये भी कहा था एक आदमी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 30 लोग घर में बिना टेस्ट के कोरोना से सफर कर रहे हैं। भारत में 16 साल से कम के बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगा, 12 साल से कम के बच्चे 25 करोड़ हैं, करीबन 35 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगेगा पहले फेज के अंदर में, मतलब मे बी इन द नेक्स्ट ईयर के अंदर में। इन लोगों को, आधे लोगों को अपने आप बीमारी हो जाएगी, मे बी 60-70% दे विल ऐड टू द हर्ड इम्यूनिटी। उसके अलावा करीबन 30 करोड़ से लेके 50 करोड़ लोगों को हो चुका है, 60 करोड़ लोगों को हमें करना है, 10 करोड़ लोगों के वैक्सीन लग जाएंगे। जितनी मर्जी आप कर लो, आप ये लिख के रख लीजिएगा कि ये बीमारी 2021 के अंदर में एंडेमिक हो जाएगी, जैसे फ्लू है, ये उस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, आम आदमी में लाइफ जिएंगे। लेकिन ये मत भूलिए कि इस बीमारी ने हमारी कंट्री में टीबी को जल्दी पकड़ दिया है, डायरिया ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है, जो लूज मोशन से बच्चे मरते थे वो इस साल कम मर रहे हैं, निमोनिया से बच्चे कम मर रहे हैं, टाइफाइड से बच्चे कम मर रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर में। वो चीज़ ना भूलें, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो प्रिकॉशंस हो रही हैं उसे हम अपनाएं, ताकि कोरोना तो जाए, उसके साथ साथ बाकी बहुत सारी बीमारियां चली जाएं। आप देख लीजिएगा जो रिजल्ट्स आएंगे, मोर्टेलिटी रेट हमारी कंट्री का 2010 में ओवरऑल नॉन कोरोना के कारण से बाकी बीमारियों की मोर्टेलिटी रेट कम आएगा, ये 100% होगा। तो मैं तो यही मानता हूं कि हमारी महिलाएं आगे आएं, इस पॉजिटिव चीज़ को जो हमने सीखी है, जो इस कोरोना ने हमें पॉजिटिव चीज़ें सिखाई हैं,
चाहे वो घर का शौच हो, चाहे घर का साफ पानी पीना हो, चाहे हाथ को धोना हो, या फिर मास्क पहनना हो, वो बंद ना होने पाए, ताकि भारत 2 चीजें से लेके मैं समाप्त करता हूँ। एक चीज याद रखिए, इस कोरोना ने 2 चीजें हमें बताई हैं। नंबर 1, चाइना इज नॉट रिलायबल। पहले भी हम कहते थे कि चाइना इज नॉट रिलायबल, अगर आपको कोई चीज 1 महीने के लिए लेनी है तो चाइनीज ले लो। जिसमें जोक भी आए थे लोगों ने, जब लोगों के जोक आते थे कि मैं बीवी भी चाइनीज लूंगा फिर तो 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, उसके साथ में वो जोक्स थे। ऐसे जोक्स भी मार्केट के अंदर में आ रहे थे। लेकिन हमें एक भी चीज पता लगी है, और वो है कि अमेरिका इज नॉट द बेस्ट, मेरा भारत महान। ये मौका है आपके पास में, अमेरिका ने दिखा दिया है दे आर नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मेरे पास में, मेरे प्रोग्राम्स में हजारों के माध्यम से अमेरिका से लोग मेरे से इलाज करा रहे हैं। यहाँ पे जितने भी इंडियंस अमेरिका में हैं, रोजाना मेरे पास जूम पे आते हैं और मेरे से इलाज करा रहे हैं, बिकॉज दे आर नॉट श्योर कि अमेरिका में क्या हो रहा है। एवरीबडी इज कंफ्यूज। सो मेरा भारत महान, मौका यह है इस वक्त में कि मेरी देश की महिला महान वो लेके चले और आगे बढ़े। मैं आज्ञा चाहूंगा, मैं डॉक्टर मोंगा और डॉक्टर कामत आपके साथ हैं, क्योंकि मेरा 5 बजे का एक दूसरा कमिटमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपकी डिस्कशन से, और पॉजिटिव नोट पे हम एंड कर रहे हैं। डॉक्टर कामत और डॉक्टर मोंगा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन जो आए हैं उसका जवाब चाहूंगी, जो हमारी क्वेश्चन में आए हैं चैट बॉक्स में। मेंस्ट्रुएशन के बारे में तो सर ने बता दिया ऑलरेडी। कोई क्वेश्चन आया था अबाउट द फूड इंटेक्स ड्यूरिंग कोविड। नहीं, ड्यूरिंग कोविड बेसिकली आई मीन न्यूट्रिशन ज़्यादा अच्छा हो, ये सब मानते हैं, प्रोटीन ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो खास इसमें जरूरी हैं। नंबर 1 आई विल से जिंक, दूसरा विटामिन डी, विटामिन सी और प्रोटीन्स। ये 4 चीज़ों की अच्छी मात्रा के अंदर, बिकॉज दे बिल्ड योर इम्यूनिटी और आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव करती हैं ये 4 चीज़ें। अदरवाइज जो भी आपने लेना है, कोई लोग काढ़ा लेना चाहते हैं, कोई लोग गर्म चाय लेना चाहते हैं, कोई लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं, देयर वेल विश, लेकिन ओवरऑल ये 4 चीज़ें और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ मानी जाती हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं। नंबर 1। नंबर 2, जब आपको हो चुका है तो होने के बाद आपने उसको कैसे अपनी बॉडी को अपबीट रखना है। तो अपने आप को, मन को अपने मस्त रखिए, टीवी देखिए, चैनल देखिए, प्रोग्राम देखिए, डिस्कस कीजिए, बातें कीजिए, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहिए। ये सारी की सारी चीज़ें ऐड करती हैं टुवर्ड्स योर रिकवरी। और जहाँ तक कैरी होम मैसेज की बात है, कैरी होम मैसेज 2 हैं। एक सरकारों के लिए कि ये कोविड ने पढ़ा दिया सरकारों को कि आपका पब्लिक हेल्थ सिस्टम बिल्कुल निलबटे नील है। यू हैव टू वर्क ऑन दीज बेसिक लेवल पर। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने स्ट्रक्चर को। और जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप प्राइमरी केयर हॉस्पिटल को, प्राइमरी केयर को इम्प्रूव करें। और नंबर 2 महिलाओं के लिए है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य को इग्नोर ना करें, तभी हम अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। डॉक्टर कामत। या डॉक्टर कामत। हाँ, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो चुका था, तो मेरे को ये पता नहीं कि क्वेश्चन क्या है। आपका एक क्वेश्चन था अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन कोविड पॉलिसी मेकिंग। तो डॉक्टर के अग्रवाल ने तो काफी हद तक उसका वो जवाब दे दिया था। मैं उसके अलावा मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि कोविड के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थी प्रीति सुदान। शी वाज ए वुमन। शी वाज टू रिटायर ऑन 31st of March। उसको 3 महीने एक्सटेंशन मिला कि वो कोविड का केयर करे। तो जून तक लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन तक प्रीति सुदान हमारे सेक्रेटरी थी। उसी समय दिल्ली सरकार में भी हेल्थ सेक्रेटरी पद्मिनी सिंगला थी। ये 2 इम्पोर्टेंट, मतलब दिल्ली में 2 महिलाएं हेल्थ सेक्टर पूरा गवर्न कर रहे थे। और आईसीएमआर में आप बता रहे रिसर्च वगैरह, आईसीएमआर में सिर्फ कोविड के लिए नहीं हुई, जितने भी रिसर्च विंग है, जितना आदमी है उतने महिलाएं भी वहां है, ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो।
मे बी फीमेल आर मोर देयर। तो वहाँ ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और हमें ये लग रहा है कि भाई जो महिलाएं जो है पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च में इक्वल पार्टनर्स बने हुए हैं इसमें, ये मैं इसको बोलना चाहता था। तो उसके बाद आपका जो सर नेक्स्ट वो एक क्वेश्चन है कि 1 पॉइंट टेक अवे महिलाओं के लिए क्या हो सकता है फ्रॉम दिस पैंडेमिक? 1 पॉइंट टेक अवे ये है कि कोविड जो है ये मत सोचना कि अभी 3 महीने में 6 महीने में खत्म होने वाला है। अभी कोविड ने हमें काफी कुछ चीजें सिखाई हैं। लॉकडाउन में कैसे रहना, अननेसेसरली ट्रैवलिंग जो बंद ये करना, लोगों से जितना जरूरत है उतना ही मिलना, और अननेसेसरली जो शोशाबाजी करते हैं इसमें शादी गीदी में, वो भी कम करना, ये सब हम लोग सीख गए हैं। और बिना मिल के भी, बिना भीड़ मचा के भी हमारा काम चल रहा है पूरा देश का। महिला भी इसमें शामिल है। और घर का काम भी हम लोगों ने अब 3-4 महीने बिना मेड का भी कर लिया। और उसके महिला के साथ उनके हस्बैंड भी जो बिल्कुल किचन में जो नहीं जा रहे थे, वो भी घर में खाना बना रहे हैं, हाँ, बर्तन साफ कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ये सारी चीजें उनको कर लिया है। कुछ चीजें होती है तो अच्छी चीज के लिए होते हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। और जो प्रॉब्लम्स मेल के साथ है, तो इसमें वही महिला के साथ कोविड के लिए इसमें खास कुछ विशेष नहीं है, लेकिन अपना सावधानी बरत के रहना, यही मैं आपको। सर 2 क्वेश्चन आई है। एक है कि जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं और एनी अदर हार्मोन्स ले रहे हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकते हैं? डॉक्टर अग्रवाल। वैक्सीन की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। ये बर्थ कंट्रोल पिल्स आर नो कंट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन। और एक क्वेश्चन आई है कि मेल फीमेल फर्टिलिटी में क्या असर पड़ सकता है कोविड-19 का? अभी इसकी स्टडी नहीं है, क्योंकि अभी 9 महीने हुए हैं। लोग हमारे पास आते हैं, महिलाएं पूछती हैं कि हमें प्रेग्नेंट होना कि नहीं चाहिए इस कोविड के टाइम पे। वी टेल देम इट इज योर चॉइस, हम यू कैन ऑलवेज गो अहेड विद इट। इसमें ऐसी कोई मनाही किसी प्रकार की नहीं है। ओवरऑल फर्टिलिटी जो है, फर्टिलिटी इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। उसके ऊपर कितना फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये समय बताएगा। सर और एक क्वेश्चन है, कैन ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन टेक कोविड मेडिकेशंस? अगर कोविड हुआ है तो लेनी पड़ेगी। और अगर कोविड हो गया है तो डेफिनेटली देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है सर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इसी के साथ आज की प्रोग्राम के समापन की ओर हम जा रहे हैं। और मैम आप कुछ लास्ट मोमेंट ऐड करेंगे? बहुत अच्छे से और बड़ी सामान्य भाषा में बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब लोगों ने सब चीज़ों को समझा दिया। और हमारी लगभग 250 महिलाएं और पुरुष इसमें जुड़े और अलग-अलग कैटेगरी के लोग आपकी बात सुन रहे थे। और हमने इसको फेसबुक पे भी ओपन डिस्कशन में रखा था और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये चल रहा था। आपने जो बात कही, इंस्टाग्राम पे भी चल रहा था और लिंक्डइन पे भी चल रहा था। तो बहुत सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। तो मेरी डॉक्टर अग्रवाल को तो मैं जरूर फिर से दोबारा वो करूंगी। और हम लोग का कम्युनिकेशन, चूंकि हम लोग सब किसी पीएनडीटी कमेटी में भी हैं, लेकिन वो उसकी भी कोई मीटिंग तब हो नहीं रही है, लेकिन फिर भी हम लोग आपस में। लेकिन डॉक्टर कामत से भी, डॉक्टर मोंगा से भी मेरी अपील है कि ये कम्युनिकेशन एक आम व्यक्ति तक पहुंचने का जरिया हम लोग हैं और हम लोग उनके बीच में ही काम करते हैं। तो हम लोगों के साथ हम आपसे अपील यही करेंगे कि आने वाले समय में भी जब हम आपसे आग्रह करें तो प्लीज आप हमारे साथ आइए। और इस न सिर्फ इसी समस्या की, अभी तो ये समस्या सबसे ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे करके जब हम और क्षेत्र में काम करना चाहेंगे औरतों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, हाउ टू रियली बिल्ड विमेन्स हेल्थ इन दिस कंट्री, इसमें हम आप लोग का सहयोग चाहेंगे। और आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। मनसे आगे आप कर लीजिए जो भी धन्यवाद वगैरह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी सारी एस्टीम पैनलिस्ट को, हमारे वैल्यूड पार्टिसिपेंट्स को। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे सीएमओ लेवल के डॉक्टर्स जुड़े थे, सब लोग जुड़े थे, हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स जुड़े थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी वैल्यूएबल टाइम के लिए। एंड मैं उम्मीद करती हूँ बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। और खास तौर पर जो घरेलू हिंसा हो रही है, इस बात पे कि कोविड-19 से कोई महिला रिकवर कर गई लेकिन पूरी तरह से वो स्वस्थ नहीं हुई,
तो उनकी स्वास्थ्य की ख्याल रखना है और घर परिवार में कैसे उनका एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम करना है, इस बारे में भी ख्याल रखना है। इसी के साथ में डॉक्टर मोंगा, डॉक्टर एन बी कामत और हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, नमस्कार। प्लीज अगर कोई केसेस आए आपके पास डोमेस्टिक वायलेंस के, जितने भी सुनने वाले लोग हैं और डॉक्टर साहब लोग जो सुन रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, प्लीज हमें आप खबर करें। मानसी का नंबर सबके पास है और हमारी टीम का पोशाली, निहारिका, ज्योति, सब लोग इस प्रोग्राम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो प्लीज वो हमें केसेस के बारे में बताइए ताकि हम उस तरह की महिलाओं की मदद कर सकें। मेरी टीम और सीएसआर की टीम की भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबने मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।